جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہم ذکر الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج ہم سب مل کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہاں ہم تیاری کر رہے ہیں کل کے خاص دن کی، جس دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول کا مبارک دن جو ہم مناتے ہیں، جس میں میلاد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. عید میلاد النبی کہا جاتا ہے جناب. عید کی طرح ہم اس کو منائیں گے اور اس کی تیاری آج ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. جنید اقبال صاحب ہیں، امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ ہیں، پروفیسر ساجدہ ہیں، فرحانہ اویس ہیں، اور میری بہت ساری سیلیبریٹی دوستیں ہیں. کومپل ہے، عظمیٰ طاہر ہے، فائزہ ہے، ڈیزائنر ہماری فائزہ ہے، درخشہ طاہر ہے، اور ہناج مہندی سے جو ہیں وہ نجمہ یہاں آئی ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. سارا آپا حلوے بناتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور گاجر کا حلوہ دیکھیے انہوں نے تیار کر لیا ہے. گاجر کا حلوہ سردی کے موقع پہ بہت زبردست لگے گا. گاجر کا حلوہ آپ نے بنایا تھا، کدوکش کر لیا تھا گاجر کو؟ جی گاجر کو مجھے پسند بہت ہے گاجر. ہاں اچھا بس ابھی انہوں نے اتنی سارے مولانا حضرات کو بہت پسند ہوتے ہیں. آج میں نے یہی کہا بیٹھتے ہوئے کہ آج مولویوں کی نہیں، وہ تو حلووں کے ساتھ مانڈی بھی پسند ہوتا ہے. بالکل حلوے پاس. سردیوں کی خاص سوغات ہے. ہاں اچھا، یہ گاجر کا حلوہ جو آپ نے بنایا ہے، اس کا بتائیں کہ آپ نے کتنے کلو گاجر لیا تھا؟ اور اس میں نے 1 کلو گاجر لی تھی. 1 کلو گاجر کو چھیل لیا، چھیل کے کدوکش کر لیا، اور آدھا کپ چینی ڈال کے گاجر چینی ڈالا، ایک کوکنگ پین میں ڈالا، کور کر دیا، سمر کر دیا. گاجر کے اپنے پانی میں، چینی کے اپنے پانی میں گاجر بہترین گل گئی. پھر ہم نے آدھا کپ گھی لیا. کتنی دیر ہم نے اس کی بھرائی کرنی؟ ہلکا سا، بس زیادہ نہیں، 10 منٹ ہارڈلی ہو جاتا ہے. زیادہ کچھ لوگ بہت گاجر کا حلوہ بہت کالا کر دیتے، کالا کر دیتے ہے نا، اس کے سارے نیوٹریشنز ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اچھا جلدی کیسے بنا لیا انہوں نے؟ بس 1 کلو لیا تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں. اچھا آپا، پھر آپ نے گاجر کا حلوہ جب تیار ہو گیا، آپ نے اس کے اوپر کیا کیا لوازمات ڈالے؟ گاجر کا جب ہو گیا تو اس میں ہم نے آدھا کپ گھی لیا، اور آدھا کپ گھی میں ہم نے تھوڑی سی 2-3 چھوٹی الائچی کڑکڑا لی. ٹھیک ہے. وہ ڈال کر اس کو بھون لیا. پھر ہم نے 1 پاؤ کھویا تھا، آدھا کھویا اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا. تھوڑا سا کھویا رکھ دیا جو اوپر گارنش کرنے میں استعمال کر لیا. تھوڑا کھویا ہم نے گاجر کے حلوے کے اندر بھی ملایا، ایگزیکٹلی، اور تھوڑا اوپر بھی ڈالا. تھوڑا اوپر ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ تیار. سارے میوے؟ جی سارے میوے اور ساری یہ دیکھیں، یہ صورتحال اس کی نکلی ہے، یہ شکل. اب ہم سب کھا سکیں گے گاجر کا حلوہ؟ بالکل کھا سکیں گے، اور بہت جلدی بھی بن گیا. مزے کے کھانے. اچھا، دوسرا حلوہ بھی تیار ہے، انڈے کا حلوہ. میں اس کو فوراً اس لیے کہ یہ تیزی پہ طرف جا رہا تھا، کیونکہ انڈا جو ہے وہ اس کے لمس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا سی مڑوڑیاں کہتے ہیں نا، مڑوڑی اردو میں. ویسے انڈے کا حلوہ بہت اچھا لگتا ہے. ہاں اچھا، انڈے کے حلوے کی ریسیپی ایک دفعہ جلدی سے ریپیٹ انڈے کے حلوے کے لیے یہ کیا تھا میں نے کہ بہت اچھا میں بھی اکثر انڈے کے حلوے کی ریسیپی سنو، عظمیٰ گھر جا کے بنانا. تینوں چیزیں سیم ویٹ لیا. جتنے میں نے تقریباً انڈے لیے تھے 10، اور آدھا کلو گھی اور آدھا کلو چینی، ذرا سا پیلا رنگ، اور 1 چائے کا چمچ الائچی پاؤڈر. پانچوں چیزوں کو بیٹر سے بیٹ کر لیا. جب وہ اچھا سا بیٹ ہو گیا تو ہم نے کوکنگ پین میں وہ مکسچر ڈال دیا. وہ مکسچر ڈال کے اس کو پکاتے گئے مستقل ہلاتے رہنا، مستقل ہلانا ہے، ہاتھ نہیں روکنا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اس شکل میں آ گیا کہ دانہ بن گیا ہے، فوراً اس کو ہم نے نکال لیا اور جما دیا. جب یہ جم جائے گا کڑک کڑک سا ہو جائے گا؟ کڑک نہیں ہوگا، بڑا اچھا زبردست سا یہ کرسپی ہوگا. اور اسی کے اوپر ہی ہم یہ بادام پستے فوراً فٹافٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جم جائیں. اور ہاف جب ٹھنڈا ہوگا نا، آدھا پورا نہیں کرنا ہے. ہاں، تو ہم اس کے بعد اس کے پیسز کاٹ لیں گے. اچھا، اور پھر ہم جب محلے میں بانٹنے جائیں گے تو اس کے پیسز کٹے ہوئے ہوں گے؟ بالکل پیسز کٹے ہوئے ہوں گے طریقے سے. اچھا، یہ گاجر کا حلوہ گرم سرو کرنا چاہیے کہ ٹھنڈا؟ دیکھیں کچھ لوگ گرم پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹھنڈا، لیکن یہ کہ اس طرح کی ٹپیکل جو ٹریڈیشنل میٹھے یا چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا وارم اچھا لگتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا میٹھا؟ تیسرا ہم آ جاتے ہیں سوجی کے حلوہ. بڑا انسٹنٹ فٹافٹ بننے والا.
1 पाव घी, 1 पाव सूजी, सूजी घी इकट्ठा कर लिया, 3 पाव चीनी, 3 पाव पानी, पीला रंग एक जगह कर दिया। चीनी पानी को बॉईल किया इतना कि चीनी डिजोल्व हो गई, कोई शीरा वीरा नहीं है, सिर्फ चीनी को डिजोल्व करना है। चीनी और पानी को अलग से बॉईल किया, बॉईल करेंगे रंग डाल के, जिस शीरा ही बनाएंगे, बट मतलब 1 तार 2 तार का चक्कर नहीं है, जस्ट इतना बॉईल करना कि शुगर डिजोल्व हो जाए। घी और सूजी भुन जाएगा, उसमें वो शीरा डालेंगे और स्टर करेंगे। एक आध इलायची भी डाल देंगे तो खुशबू जी इलायचियाँ तो जाएंगी, इलायची के बगैर तो गुजारा नहीं है। अच्छा मुझे एक ये बात बताइए कि क्या हलवों को एक दिन पहले ही बनाना मुनासिब है या कल बनाएं? क्या कहते हैं आप बिल्कुल बना के रख सकते हैं, ये तो अगर आज बना के रख लें तो जरा सुबह जल्दी सबके घर में के लिए अलग से निकाल लें, झूठा ना करें, जब आप बना लें खत्म के लिए मेरे ख्याल से अलग से निकाल सकते हैं। लेकिन हलवा जो है ना, हलवा अगर ताज़ा ही बन के दिया जाए, बांटा जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हमने आज इसीलिए लोगों को बता दिया, जिन खवातीन को नहीं आते हलवे बनाना तो वो कल ट्राई करें सारा आपा की रेसिपीज। बस ये तो अंडे का हलवा तो आप पीसेस बना के रखें, ये तो गरम तो होता ही नहीं है सर, तो ये ताज़ा ही रहता है। और गाजर का हलवा भी बिल्कुल आप गरम करके सर्व कर सकते हैं। मैं आ जाऊँ अपनी जगह पे, तो मैं इस पे आ जाती हूँ, आप आ जाए अपने तीसरे वाले हलवे पे। और हम जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वो हमने बात ये की थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, उनका हुस्न सलूक अपनी जो खवातीन है घरेलू यानी बेगमात के अलावा बेटियों के साथ। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर साजिदा कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कह रही थी, अभी आपने देखा सारे लोग उज़्मा समेत दरख्शा, मतलब इस्माइल को देख के हम सब के अंदर कितनी नेमतों की, खुदा की नेमतें की कितनी नेमतें जो दी थी, ये ज़ाहिरी नेमतें हैं जिनको हम बक़ाए हयात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बादाम है, गाजर है, वो हमारे लिए न्यूट्रिशन के तौर पे। लेकिन ये देखें ईमान की दौलत कामिला, वो नेमतें, वो नेमत के जिसके जरिए हमें ईमान नसीब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उज़्मा। अब यहाँ पर ये मैं अब जब आपका ये सेट देख रही थी तो मेरे जहन में एक खूबसूरत सा शेर आ रहा था कि ये करम ये बंदा नवाजियाँ कि सदा अता पे अता हुई, जो मिला तलब से सिवा मिला, कभी रद न अर्ज़े गदा हुई, वो जहाँ जहाँ से गुजर गए, वो जहाँ जहाँ ठहर गए, उन्हीं रास्तों में सजी कोई अंजुमन, उन्हीं रास्तों में जिया हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब ये जो बात है ना, जब हम खासतौर पर मैं जब कॉन्फ्रेंस के दरमियान खड़ी होती हूँ, मेरा एक बहुत जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पर आजकल मैं काम करती हूँ, जेंडर सेंसिटाइजेशन है। यानी आप इक्वालिटी की तरफ जाते हैं। अब हम अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े मैनुअल मिलते हैं, आपके यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपके यहाँ एक तरह से ब्रेन वॉशिंग हो रही है या ब्रेन माइंडसेट बना रहे हैं कि जी आप औरत को इक्वल राइट दें। वो कब कर रहे हैं? वो इस वक्त 21वीं सदी में आके कर रहे हैं। लेकिन ये चार्टर जैसे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कब करके दिखा दिया कि जब ना तालीम थी, ना इल्म थे, ना फ़नून थे। यहाँ पर एक और बात बहुत खूबसूरत, और कभी कभी बड़े लोगों के साथ जब बात होती है, उस वक्त जब आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपका रिश्ता अज़वाज कायम हुआ, आपकी उम्र क्या थी? 25 साल की थी और खातून की उम्र 40 साल की थी। आज हमारे यहाँ कितनी माएँ, कितनी बहनें, कितने ऐसे लोग हैं जो उम्रों के इस गैप को कितना बड़ा एक तरह से समझते हैं कि औरत के लिए एक बहुत बड़ा ताना समझते हैं। औरत की बड़ी उम्र की औरत है, जरा सी लड़की की उम्र निकल जाती है, शादी की तो उसको ताने देना शुरू। अच्छा, और फिर बर्दाश्त ही नहीं करते, सारी जिंदगी उसको सोशल टैबूज के अंदर उसको मार दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि कायनात का जो हुस्न है, जो अज़वाज का हुस्न है, वो पहली वो खातून है कि जो आपसे उम्र में बड़ी है, तदब्बुर में, हिल्म में, और फिर मालदार है, और इधर आपके पास कुछ भी नहीं है। देखिए ये जेंडर सेंसिटाइजेशन का अमल शुरू ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हुआ। फिर सारी जिंदगी एक और, फिर दूसरा वफादारी का सबक भी क्या यहाँ आम मर्दों को नहीं मिलता कि एक खातून उम्र में भी बड़ी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक यहाँ पर आपसे बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी। कोई दूसरी ज़ौजा का तस्वीर वफादारी का है। 53 साल की उम्र में अज़वाज का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ, मगर वो मकसद बशरियत नहीं था, नफ्स का तकाजा नहीं था। यहाँ जो बाहर सवाल पैदा होता है कि इतनी अज़वाज मुताहरात की तादाद क्यों, तो उसकी वजह ये थी कि नफ्स 53 साल की उम्र में नहीं, और अरब का आप क्लाइमेट देखें तो वहाँ पर ये 53 साल की उम्र नफ्स के लिए नहीं थी, बशरियत के तकाजे के लिए, मादी तकाजे के लिए, औलाद के हुसूल के लिए या तस्कीन के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें अब जो खासा था कि दीन फैल चुका था और उम्मत की खवातीन के जरिए ज़ाहिर कि इतना बड़ा, अब आप हम तो अब यहाँ पर स्टैटिक के जरिए कह रहे हैं ना कि 51 है, लेकिन
मालूम है कि जो भी सोसाइटी है, कौम है, माशरा है, इकाई है, खानदान है, उसमें 2 यूनिट है, एक मर्द एक औरत है। मर्द तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तरबियत ले रहे हैं, अब औरतों के लिए तरबियत कहाँ से आएगी? उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था। तीसरी चीज इसके अंदर एक डायमेंशन और भी है, जब लोग ये बात कहते हैं ना, मैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्शन को जो रेज लोग करते हैं ना कि इतनी अज़वाज, इतने लोग, तो कबीले देखें, कौम देखें, हालात देखें और खवातीन देखें। शाही महलात की भी खवातीन है, हज़रत सफिया जो कैदी बन के आती है, नाज़ुन्नम में पड़ी हुई है। आपका हुस्न सुलूक देखकर आपके साथ शामिल होने की जिंदगी में ख्वाहिश जाहिर करती है, मगर यहाँ पर क्या है कि खाने पीने के लिए एक वक्त से दूसरे वक्त भी नहीं है। तो जब औसाफ ऐसे हो, सिफत हमीदा ऐसी हो, तो फिर खातून ने कदम बढ़ाया। तो यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूंगी कि हम तारीफ क्यों करे जा रहे हैं, क्यों करे जा रहे हैं, क्यों करे जा रहे हैं। अब मैं अंबिया कराम के नामों से इसकी मुनासबत दूंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम गंदुमी रंगत को कहते हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाक से बने थे, तो गंदुमी रंग। देखिए अस्माए गरामी का ताल्लुक, और जो हम ये कहते हैं ना हमने नाम रख दिया तो अंदर उसकी वो असर पजीरी या इफेक्टिविटी आती है, तो वो आती है। अब आप ये कहें कि हजरत इसाक अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा हंसने वाले थे, जाहिक थे, तो उनका नाम इसाक रखा था। याकूब कहते हैं पीछे आने वाले को, वो अपने भाई तमाम पैदा हुए थे। अच्छा, मूसा कहते हैं संदूक से निकाला हुआ, और ईसा सुर्ख रंगत को कहते हैं, नूह कहते हैं आराम को, और याहिया कहते हैं उम्र दराज को। अब ये थोड़े से मतलब ये अस्माए गिरामी के ऊपर अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं तो 2 मीम उसके अंदर जाहिर करती है, मालिक दुनिया व आखिरत, है जाहिर करती है रहमत को, और दाल जाहिर करती है तमाम तर दायमी को। तो जब नाम के अंदर इतनी सिफात हैं, जब नाम के अंदर ही इतनी सिफात हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक शख्स, इसमें बामुसम्मा कहा जाता है ना, आप बर्फ को देखते हैं तो ठंडक का एहसास हो रहा है, पहाड़ से नाम आप पहाड़ ले लें तो आपको सख्ती आती है, आप फौलाद को कहेंगे आपके जहन में। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये वही तो नाम का करिश्मा था कि जिसके लिए लोग ये कहते थे कि मुखालफत करते थे, किरदार की मुखालफत नहीं की कभी, तबलीग की मुखालफत की, किरदार की मुखालफत किसी ने नहीं की। जिसने अपना सामान रखवाया वही जो है वो आपका जानी दुश्मन भी था, वही आपका तकलीफें देने वाला सबसे बड़ा था। मुजम्मम कह के अगर आपको मुखातिब करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना अक्सर ये हुआ करते थे कि मैं तो मोहम्मद हूँ, ये मुजम्मम से बात करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जी यहाँ पर ये जो मैं बात करती हूँ ना, हमारे यहाँ जो प्रीवियस टू करंट अगर लिंकेज जब हम बनाते ना, तो हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो कहते हैं फला थ्योरी दे दी है, जेंडर रोल की थ्योरी दे दी है, वो कहता है सेंसिटाइजेशन के लिए हमने ये चार्टर दिया, हमने ये कन्वेंशन बनाया, हमारा ये सीडा है, हमारा ये वुमेन राइट है, ये वुमेन राइट बन चुका था। मैं चाहूंगी अब, क्योंकि हलवे भी तैयार हो गए, मैं चाहूंगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा कितना पसंद था, ये आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा हो तो हमसे शेयर करें। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के खाने तनावुल फरमाए, हर तरह के खानों को पसंद फरमाया। आपने किसी भी खाने से कभी रुख नहीं मोड़ा, और मीठे में खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अरब में रहते हैं तो खजूर को पसंद किया जाता था, खजूर के हलवे को पसंद किया जाता था। आपने खुद भी तनावुल फरमाया। उसके अलावा जो बेहतरीन खाना आप हम रोस्ट खाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी तनावुल फरमाया। गोया आपने गरीब से गरीब उम्मती का भी ख्याल रखा, सादा सा खाना भी खाया, ताकि वो ये ना समझे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इतनी नेमतें खाते रहे, नहीं, उसके साथ भी शरीक हुए। और जो अमीर एक खाता है खाना, वो भी आपने तनावुल फरमाया और बेहतरीन अंदाज से, और जमीन पर सादगी के साथ दस्तरखान बिछाकर उस जमीन को भी गोया इज्जत बख्शी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो जमीन जो अंबिया आते थे तो एक मखसूस जगहों पे इबादत किया करते थे, अल्लाह के महबूब नबी आए तो जमीन सारी पाक कर दी गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जमीन को इज्जत अफजाई दिया करते थे। आप कुएं पर अगर तीर फेंक देते हैं, लुआबे दहन डाल देते हैं, तो कुआं अपना मीठा पानी उबल देता है। वो जो पहले कड़वा था वो मीठे में चेंज हो जाता है। तो अपने खजानों को उलट देते थे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। जैसे पहले भी बात हो रही थी कि ये एक मोहब्बत है जो कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर अल्लाह ने रखी है। और हम जमीनी चीजों की बात करते हैं, उस निज़ाम में अफलाक ने भी मोहब्बत
मोहब्बत की है, चांद ने भी प्यार किया, अपने वजूद को दो लख्त करना आसान नहीं होता। सूरज ने भी मोहब्बत की कि वो मगरिब से पलट कर आया, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, सूरज तो मशरिक से तलू हुआ करता था। एक दरख्त ने मोहब्बत की कि हुजूर ने इशारा फरमाया तो जड़ें खींच कर जमीन से निकालनी और आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज करता है। ये प्यार है जो पूरी कायनात में बेशक रवां दवा है, और इसी प्यार के सहारे ये कायनात कायम है कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अच्छा, उसमें सिरका और लौकी का आपने इस्तेमाल फरमाया दस्तरखान पे, और आप आज देखें, मैं साइंटिफिक उसकी लॉजिक देती हूँ। सिरका आपके तमाम तर, जिसको कहते हैं ना कि आपकी तमाम तर जितने भी बीमारियां हैं उनको दूर करता है, और आपकी जो पैल्पिटेशन है उसको बढ़ाता है, आपकी बॉडी से रिलीज करता है, एंटीटॉक्सिक्स होता है। दूसरे लौकी, आज आप देख लें जितनी भी हार्ट की बीमारी है, जब आपके पास कुछ होता है बायोग्राफी, तो आपको कहते हैं कि जी आप लौकी का पानी पीजिए, आप डाइट के अंदर लौकी दुबले होने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो चीजें हैं तो ये यकीनन उन जानिब इशारा था। जैतून के लिए क्या कहा? जैतून के को बहुत पसंद फरमाया करते थे, और हमेशा आपके दस्तरखान के ऊपर ये चीज, और सुरेद जो कहते हैं ना शोरबे वाली रोटी, आज हमारे यहाँ मरीजों को जो शोरबा यखनी देते हैं, देखिए ये क्या चीजें हैं, अगर आप साइंटिफिक अगर इसकी एक्सप्लेनेशन लेके, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितना कि 63 साल की उम्र है, लेकिन वो दिखा दिया फेल और अमल करके, जो अब साइंस भी इसको डिनाई नहीं कर सकती, पहले से प्रूफ जो टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती, और क़यामत के आखिरी दिन तक ये आपकी तमाम चीजें साबित होती हैं। और खजूर के हवाले से आका ने फरमाया ना कि महीने में अगर आप 3 दिन भी खा लेते हैं 3 खजूरें सुबह के टाइम, तो फिर आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इसी तरह से शहद का इस्तेमाल आपने फरमाया कि शहद का इस्तेमाल करो। शहद जो है ये भी आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा होता है। तो जब हम नेचर के करीब आते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा हेल्दी महसूस करते हैं। तो इसीलिए जहाँ खजूर होगी, जहाँ शहद होगा, तो यकीनन वहाँ पर बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए अगर हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते रहें तो हमारे लिए अच्छा है। और जहाँ तक ये बात है कि आका ने हलवे इस्तेमाल किए, इस तरह की चीज़ें, तो हलवों का कोई जिक्र ऐसा सच नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त तो 2 वक्त की रोटी आपको मिल जाती थी, तो वो उस पर आप इंतहाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार होते थे, क्योंकि आपकी कोशिश ये होती थी कि मुझसे पहले मेरा कोई उम्मती भूखा ना रह जाए। तो दरवाजे पे आए हुए को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। तो बहुत दफ़ा ये होता था कि खाना खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो आका ने अपना पूरा खाना उठा के उसको दे दिया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर का विसाल हुआ, उसके बाद एक मरतबा आपको गंदम की रोटी पेश की गई तो आप रोने लगी, और आपसे पूछा गया कि आप क्यों रो रही हैं, तो आपने फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में, आका की ज़िंदगी में कभी हमने पेट भर के 2 वक्त खाना नहीं खाया, और आज मेरे सामने गंदम की रोटी रखी है तो मुझे याद आ रहा है कि हम किस तरह से वक्त गुजारते रहे। तो आज हम लोग इस कदर खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जिस तरह से आका ने सादगी इख्तियार की थी खाने पीने में, अगर हम उसको इख्तियार करें और वो खाना जो हमारे पास बेशुमार रखा हुआ है उसमें से उन लोगों तक भी पहुंचा दें जो नहीं खा पा रहे या जिनको कुछ कमी है, और हम अपने अतराफ में ही देखें तो ऐसे कई लोग मिल जाते हैं। तो अगर हम आज के दिन ये तय करके उठें कि कोई एक आदत तो हम इख्तियार करें आका की, जब हम मोहब्बत के दावेदार बनते हैं, तो क्या सिर्फ महफिलें ही सजा लें तो काफ़ी है, या क्या हम सिर्फ मिलाद कर लें तो काफ़ी है? हम मोहब्बत का इजहार उसी वक्त कर सकते हैं जब अपने किरदार में उनकी सिफात को शामिल करेंगे। तो इसलिए ये अहद करना चाहिए हर मुसलमान को कि इस महीने में, इस दिन मैं ये अहद करता हूँ कि आज एक वो काम इख्तियार करता हूँ जो मेरे आका ने किया, और उसे सारी जिंदगी उसी तरह करूंगा, तो फिर इस मोहब्बत का इजहार होगा। हम अगर सख्ती अपने अंदर से खत्म कर दें, मतलब हमारा फोकस खानों पे, अयाशी पे, अपनी चीजों पे नहीं है, अगर हमारे अंदर का किरदार बेहतर हो जाए तो हम सब बहुत अच्छे मुसलमान हो जाए। और इसी बात के साथ हम इसी तरह से छापे मारती रहे लोगों के ऊपर, तो लोग जो है सीधे हो जाएंगे। हम दुरूद शरीफ के साथ ब्रेक पे जाएंगे। हमारे यहाँ सारे जो हलवे सारा आपा ने बनाए हैं वो तैयार हैं। सारा आपा अपने प्रोग्राम की तैयारी के लिए निकल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सारा आपा प्रोग्राम में शामिल होने का। और वो खवातीन जिनको शायद इतना सुगड़ापा नहीं है जिनके अंदर, और उनको हलवे नहीं बनाना आते या आपकी रेसिपीज नहीं आती, उन्होंने आपसे आज सीख लिया है। कल इंशाल्लाह मोहल्ले में जरूर आपको सारा आपा के बने हुए हलवों की खुशबू महकती हुई सुनाई। खाने के लिए ये करेगी ना उस्मा, है ना? ऐसे तो नहीं दूर से दिखा के मैं खिलाऊंगी आपको। उस्मा छोटा है, उस्मा छोटा है। मैं बल्कि चाय मांग रही है। चाय भी आपको मिलेगी, हलवे भी, चाय भी सर्व करें छोटे। अच्छा जी, हाँ, रिश्ता नहीं आया मेरा। दूध शरीफ से हम जाएंगे, शुरुआत करें।